السلام علیکم TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں وقار حسین. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر. کرونا وائرس نے مزید 46 زندگیوں کا خاتمہ کر دیا، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1119 نئے مریض سامنے آ گئے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال واحد آپشن ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انتخابی عمل میں لازماً شریک بنائیں گے. لوگوں کی جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ بجٹ تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی افسوسناک ہے. پوری دنیا میں غلط پیغام دیا گیا. عدالتوں کے ریکارڈ رومز MQM کے کارناموں سے بھرے ہوئے ہیں. سعید غنی کہتے ہیں کہ MQM کو اپنی ذلت پر غور کرنا چاہیے. PTI کے سابق رہنما سردار عزیز پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. کراچی اور لاہور میں کرونا وائرس کی ویکسین کی کمی کا انکشاف ہوا ہے. عوام کو پریشانی کا سامنا. وفاقی وزارت صحت نے ویکسین قلت مقامی بد انتظامی قرار دے دیا. بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کی اپیل پر قلات میں احتجاج. شاہراہیں بلاک، مسافروں کو مشکلات کا سامنا. مونسون کی بارشوں سے قبل برساتی نالوں کی صفائی اور ٹنوں کچرا اٹھانے کا دعویٰ. سندھ حکومت کی صفائی مہم سے عوام نالا. کوئٹہ میں عبدالستار ایدھی کا کاداور مجسمہ نصب. مجسمے کا مقصد عبدالستار ایدھی کو گراں قدر سماجی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرنا ہے. کینیڈین صوبے یارک ریجن میں سیاہ فام شخص پر حملہ. پولیس نے 51 سالہ ملزم کو گرفتار کر لیا. پولیس کی عوام سے نفرت پر مبنی واقعات کی حوصلہ شکنی کرنے کی اپیل. کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں معمولی کمی. مریضوں کی مجموعی تعداد 14,05,146 تک جا پہنچی. ہلاکتیں 26,001 ہو گئیں. کینیڈین وزیر اعظم ہوٹل میں قرنطینہ کے بعد چیک ان کرا سکتے ہیں. سرکاری تجویز کردہ ہوٹل میں نہ رہنے پر ٹروڈو تنقید کی زد میں. ٹروڈو کے دفتر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے صحت عامہ کے قواعد اور مشوروں پر عمل کیا ہے. ایئر کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ٹھن گئی. ایئر کینیڈا نے اپنے اوپر لگنے والے جرمانے کے خلاف قانونی جنگ کا اعلان کر دیا. ایئر کینیڈا کا کہنا ہے کہ امریکی محکمے کے موقف میں کوئی قابلیت نہیں ہے. امریکہ میں بڑھتے پرتشدد واقعات داخلی دہشت گردی ہیں. جو بائیڈن کا اعتراف. امریکی صدر کہتے ہیں کہ داخلی دہشت گردی نفرت، تعصب اور انتہا پسند نظریات کے باعث پھیلتی ہے. انہیں درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکی اور روسی صدور کی جنیوا میں ملاقات. بائیڈن کہتے ہیں کہ صدر پیوٹن سے بات چیت اچھی اور مثبت رہی. روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس اور امریکہ دنیا میں اسٹریٹجک استحکام کو فروغ دیں. امریکہ میں 70% نوجوانوں کو ویکسین لگنے پر جشن کا سماں. کرونا پابندیاں بھی ختم. نیو یارک کے گورنر کا کہنا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم نے عوام کے تعاون سے ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے. ایران کے صدارتی انتخابات کل. 3 امیدوار دستبردار ہو گئے. قدامت پسند ابراہیم رئیسی صف اول کے امیدوار ہیں. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 9,000 سے زائد اموات، 3.5 لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آئے. سعودی عرب میں مساجد میں نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت. کینیڈین بلاگر روزی گیبریل ہنزا میں سیاحوں کے رویے سے نالا. مقامی افراد نے بھی وہاں موجود کچرے اور آلودگی سے متعلق اپنے خدشات ان سے بیان کیے. روزی کہتی ہیں کہ حالیہ سرگرمیاں ثقافت کے لیے خطرہ ہیں. کنگنا رناوت کو عدالتی محاذ پر ناکامی کا سامنا. ممبئی ہائی کورٹ نے درخواست کو مبہم قرار دے دیا. درخواست کی سماعت سے انکار کیا گیا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. کرونا وائرس سے 46 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 21,874 ہو گئی ہے. پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,45,184 ہو گئی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,119 نئے کیسز رپورٹ ہوئے.
पंजाब में 3,44,474, सिंध में 3,29,279, खैबर पख्तूनख्वा में 1,36,474, बलूचिस्तान में 26,409, गिलगित बल्तिस्तान में 5,745, इस्लामाबाद में 82,253, जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,844 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,39,71,689 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,196 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,87,095 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,494 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 46 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 21,874 हो गई। पंजाब में 10,586, सिंध में 5,292, खैबर पख्तूनख्वा में 4,247, इस्लामाबाद में 773, बलूचिस्तान में 297, गिलगित बल्तिस्तान में 108 और आज़ाद कश्मीर में 571 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ के राय दही का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं, उनको इंतखाबी अमल में लाज़मन शरीक बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क में इंतखाबी अमल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इंतखाबी अमल में इस्तेमाल में शफाफियत और तमाम आइनी तकाज़ों को पूरा करने की हिदायत देते हुए अपने अज़म का अदा किया कि मौजूदा हुकूमत मुल्क के इंतखाबी अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के हवाले से पुरअज़म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबी अमल में धांधली रोकने और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुल्क का असासा है, उनको इंतखाबी अमल में लाज़मन शरीक बनाएंगे। इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ के राय दही का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल करते हुए कहा है कि 22 करोड़ आवाम ने हमें नुमाइंदगी के लिए सिवान में भेजा। कौमी असम्बली इजलास का रोज़ाना का खर्च करोड़ों रुपए है। एक एक पाई अवाम और मुल्क की अमानत है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई अफसोसनाक है। पूरी दुनिया में गलत पैगाम गया। बजट के हर सफ़े पर महंगाई, महंगाई और महंगाई। लोगों की जेब खाली है तो बजट जाली है। कि हमारा ये फैसला था अपोजिशन का कि हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, तो हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे उनकी भी बात सुनेंगे। लेकिन बहरहाल जो हुआ, जनाब स्पीकर, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत गलत पैगाम गया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 22 करोड़ आवाम ने हमें नुमाइंदगी के लिए इस ऐवान में भेजा। ऐवान में जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। कौमी असम्बली इजलास का रोजाना का खर्च करोड़ों रुपए है। एक एक पाई आवाम और मुल्क की अमानत है। हालिया दिनों में जो कानून साजी हुई वो आइन के मुताबिक नहीं। बिलडोज कानून साजी को हमने सेनेट में जाकर रोका। ये ऐवान, जनाब स्पीकर, बशमूल आपके और पूरे इस हाउस में हर दिन का खर्चा तकरीबन करोड़ों रुपए का खर्चा है, जो कि इस मुल्क के गरीब अवाम की पूंजी से ये ऐवान के अखराजात उठाए जाते हैं। उसके लिए जनाब स्पीकर, यहां पर एक एक लम्हा ये अवाम की अमानत है, एक एक पाई इस मुल्क की अमानत है। अगर हम इन वसाइल को हम अमानत जानकर अपना फर्ज अदा नहीं करते तो मैं समझता हूं कि वी आर नॉट फेयर टू आवरसेल्फ एंड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ का कहना था कि आवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। गरीब आवाम के लिए एक रोटी आधी हो चुकी। लोग बच्चों की फीस अदा नहीं कर सकते। कई स्कूल छोड़ गए। 3 साल के दौरान पाकिस्तान में मुफलिसी और गुर्बत ने जगह ली। वजीर खजाना की बजट तकरीर में हर सफ़े पर महंगाई महंगाई लिखा था। बजट तकरीर के हर सफ़े पर बदहाली और गुर्बत लिखा था। उसके नतीजे में गरीब की एक रोटी आधी हो चुकी है। जनाब स्पीकर, लोगों ने
मजबूर होकर अपने बच्चों की चूंकि फीसें अदा नहीं कर सकते, स्कूल छूट गए हैं, इस एयर कंडीशन हाउस में मैं और आप शायद उन हालात का सही तौर पर अंदाजा नहीं कर सकते जो कि पाकिस्तान के तूल और अर्ज में, चाहे वो मेहरान की वादियां हों या पंजाब के मैदान हों या केपीके के पहाड़ हों या बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ हों, इससे तो जनाब स्पीकर वो वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि जो गुल MQM ने शहर में खिलाए वो हम नहीं खिला सकते। हमने कराची में ज़िमनी इंतखाब जीता है और अपने वोट बैंक में इजाफा किया है। अब बल्दियाती और आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची से बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में PTI छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले सरदार अजीज़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि जिन इलाकों से MQM को 80,000 वोट मिलते थे, आज 5,000 वोट मिले। उन्होंने पार्क, सड़कों और नालों पर तजावुज़ात कायम कराई हैं। चीफ जस्टिस साहब सही कहते हैं, कराची में कब्जे हुए हैं। कि जो कुछ चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि कराची के साथ ज्यादती हुई है, माजी में बिल्कुल हुई है। कराची में एमिनिटी प्लॉट पर कब्जे हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। कराची में लोगों को गलत तौर पे आबाद कराया गया, बिल्कुल कराया गया है। तो मेरी तो गुजारिश ये है कि जिन जिन लोगों ने ये काम किए हैं, चाहे वो सियासी लोग हैं, चाहे वो गैर सियासी लोग हैं, सरकारी अफसर हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल वो कार्रवाई का फैसला करें। सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची में जो काम शुरू किए हैं उसके नताइज आपके सामने आए हैं। हम MQM की जैसी कत्लो गारतगरी और बदअमनी फॉलो नहीं कर सकते। कोई सियासी हुकूमत ये नहीं कर सकती कि हज़ारों लोगों को बेघर कर दे। जब कब्जे हो जाते हैं और घर बन जाते हैं, फिर उन्हें उठाना आसान नहीं होता। अलादीन पर बनी मार्केट के मुतासिरीन को पहले सेटल होने के लिए वक्त देना चाहिए। अदालत का फैसला आता है, इदारे जो है वो उस पर काम करते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। जिस तरह कल आपने देखा पवेलियन एंड पे भी हुआ, अलादीन पार्क पर भी हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों कराची और लाहौर में कोरोना वायरस की वैक्सीन की किल्लत का इंकशाफ हुआ है। सूबे का कहना है कि हदफ मुतासिर हो रहा है, जबकि वफाकी वजारत सेहत ने मामला सूबाई बद इंतज़ामी करार दे दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। सूबाई दारुल हुकूमतों कराची और लाहौर में कोरोना वायरस की वैक्सीन की किल्लत का इंकशाफ हुआ है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत का कहना है कि वफाकी हुकूमत को सिंध में वैक्सीन की कमी का पहले ही बता दिया था। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जल्द ही वैक्सीन की फराहमी की यकीन दहानी करवाई है। हमने सिंध की 70% आबादी को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया था। वैक्सीन की कमी की वजह से हमारा हदफ मुतासिर हुआ है। वैक्सीन की किल्लत के हवाले से डॉक्टर आफ्ताब का कहना था। देखिए कुछ सेंटर्स पे है कि उनकी वैक्सीन कुछ कमी हुई है, क्योंकि माशाल्लाह अब लोगों का काफ़ी ज़्यादा रुझान जो है वो वैक्सीनेशन की तरफ आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई है जिनकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर आया है। तो लोग पहले कुछ हज़ारों की तादाद में करा रहे थे, अब ये वैक्सीनेशन लाखों की तादाद में हो रही है। तो इस वजह से इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गई है। डेफिनेटली इसी वजह से सप्लाई डिमांड के कुछ इशूज़ आ रहे हैं। दूसरी तरफ वफाकी वजारत सेहत का मुल्क में कोरोना वैक्सीन की कमी के मामले पर कहना है कि कराची लाहौर में किल्लत की जिम्मेदारी वफाक पर नहीं है, ये मकामी बद इंतजामी का मामला है। वजारत सेहत के मुताबिक नाकिस प्लानिंग, बाहमी राब्तों में फुकदान वैक्सीन किल्लत की वजूहात हैं। अहम सेंटर्स पर कम, गैर अहम पर ज़्यादा वैक्सीन तरसील से मसाइल जन्म लेते हैं। इजला में वैक्सीन का तरसील प्लान, सेंटर्स के लिए वैक्सीन मिकदार, तरसील की तारीख का तयन सूबाई हुकूमत करती है, जबकि वफाकी हुकूमत सूबों को हस्बे ज़रूरत वैक्सीन फराहम करती है। ख्याल रहे कि सूबों को ताहाल वैक्सीन की 13 मिलियन से ज़ायद खुराकें दी जा चुकी हैं। वफाक के पास कोरोना वैक्सीन की 20 लाख से ज़ायद खुराकें हैं। कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली के सामने मुत्तहिदा अपोजिशन ने बजट में नज़रअंदाज किए जाने के खिलाफ एहतजाजी धरना दे दिया है। अपोजिशन जमातों की अपील पर मुजाहिरीन ने कौमी शाहराहें ब्लॉक कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली के सामने मुत्तहिदा अपोजिशन ने बजट में नज़रअंदाज किए जाने के खिलाफ एहतजाजी धरना दे दिया है। अपोजिशन जमातों की अपील पर मुजाहिरीन ने कौमी शाहराहें ब्लॉक कर दी। बलूचिस्तान असम्बली की अपोजिशन जमातों
BNP, पश्तूनख्वा मैप और जमीयत उलमा इस्लाम का अपने हलकों को नज़रअंदाज करने के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुत्तहदा अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता सालों की तरह इस बजट में भी अपोजिशन रहनुमाओं के हलकों को नज़रअंदाज कर दिया गया। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुत्तहदा अपोजिशन गुज़िश्ता 3 रोज़ से बलोचिस्तान असेंबली के सामने एहतजाजी कैंप लगाए हुए हैं, जबकि मुत्तहदा अपोजिशन की कॉल पर कोयटा से दीगर सूबों को जाने वाली कौमी शाहराहों को ब्लॉक कर दिया गया। कोयटा से चमन और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहरा को कचलाक के मकाम से बंद किया गया है, जबकि कोयटा से तख्तान और कोयटा से कराची जाने वाली RCD शाहरा को मियाँ गुंडी के मकाम से ब्लॉक किया गया। शाहराहों की बंदिश से दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दोनों जानिब सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मानसून की बारिशों से कबल परेशानी से बचने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात से अवाम गैर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। अवामी हल्के कहते हैं कि सूबाई हुकूमत की जानिब से महज दावे किए जा रहे हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक 14 दिनों में 2 लाख क्यूबिक फीट कचरा नालों से निकाल लिया गया है। 2773 डंपर्स में फुजला लैंडफिल साइट मुंतकिल किया गया। जिला गरबी के बरसाती नालों से 4,69,000 क्यूबिक फीट फुजला, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से 1,31,515 क्यूबिक फीट कचरा और बल्दिया बस्ती से 5,99,450 क्यूबिक फीट बरसाती फुजला लैंडफिल साइट मुंतकिल किया गया। बल्दिया मलीर से 99,500 क्यूबिक फीट फुजला 107 डंपर्स के जरिए मुंतकिल किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से 1,24,539 क्यूबिक फीट कचरा मुंतकिल किया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ से 5,74,295 क्यूबिक फीट फुजला लैंडफिल साइट्स मुंतकिल किया गया। दूसरी तरफ आवाम सूबाई हुकूमत की सफाई मुहिम और बरसाती नालों की सफाई से नाला दिखाई देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि गुज्जर नाले में कचरा फुल है। एक शहरी मोहम्मद वसीम का कहना था, सफाइयाँ तो अभी कहीं नहीं हो रही। हाँ, बड़े बोर्ड की तरफ थोड़ा देखा मैंने, आज क्रेन लगी हुई थी, बाकी इधर नहीं हो रहा। बारिश हो गई तो अभी तबाही मच जाएगी। फिर बस यही है कि सफाइयाँ होनी चाहिए। कोयटा शहर के वस्ती इलाके में मुमताज़ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी का कदावर मुजस्मा नस्ब कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कोयटा शहर के वस्ती इलाके में मुमताज़ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी का कदावर मुजस्समा नस्ब कर दिया गया। आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी का मुजस्समा उन्हीं के नाम से मंसूब अब्दुल सत्तार ईदी चौक पर नस्ब किया गया है। ये मुजस्समा कोयटा के मारूफ आर्टिस्ट और मुजस्समा साज इसहाक लहड़ी ने तैयार किया और इसे पीपल्स प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के ताउन से नस्ब किया गया है। इसहाक लहड़ी का कहना था, ईदी साहब शुरू से मेरे आइडियल रहे हैं। जहाँ तक कि उनके स्कल्पचर बनाने का ख़्याल है, वो शुरू से मेरे जहन में था कि मैंने उनका एक स्कल्पचर बनाना है, लेकिन चूँकि मेरे पास वसाइल की कमी थी, हमने ये स्कल्पचर स्टार्ट किया दिसंबर में और मार्च में मैंने ये कंप्लीट किया। 3 महीने की मतलब 3 महीने का कलील अरसा लगा है इसको मुकम्मल करने में। PPHI इंतज़ामिया के मुताबिक मुजस्समे का मकसद अब्दुल सत्तार ईदी को गिरह कदर समाजी खिदमात पर खराज तहसीन पेश करना है। ख्याल रहे कि चंद माह कबल बलूचिस्तान के शहर ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी के साथ बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मुकम्मल और कदावर मुजस्समा तैयार करके नस्ब किया गया है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।